Very good morning, students. Most welcome in your literature class for the 11th class, you know that. Okay. So as you know that up to now we have covered lots of question in composition. The first section was in short composition, there was advertisement, and the second one was of your notices. Still the same questions are going on, but don't forget that we have the literature also. As I inform you that on WhatsApp number that we would start the book number second, it is snapshot first because it's about the stories and enjoyment and very beautiful stories we have. Okay, so that's why I'm going to start the literature section of 11th class. Okay, just have the lots of enjoyment and have lots of surprise in this book. The book number second is of your snapshots. We have the first one. If we have chance to get the face-to-face classes, if we'll not, then we'll discuss about it. There is no problem. Okay, book is snapshots in 11th class. Snapshots यहाँ पर book हमारे पास है. We'll have the chapter number first. The summer of the beautiful White House. Beautiful White House का summer season, मतलब सुंदर सफेद घोड़े वो summer season में यहाँ पर कुछ story है. We'll discuss about with the same chapter just after some moments. The summer of the beautiful White House. Beautiful White House का summer, written by William Saroyan. Written by William Saroyan. Exactly this story. This story basically speaks about two Armenian boys. The summer of the beautiful White House, written by William Saroyan. This story speaks about two Armenian boys. Two Armenian boys whose names are Aram and Murad. Okay, their names are Aram and Murad. Aram exactly was of 9 years old. He was 9-year-old boy, and Murad was of 13 years old. He was 13 years old boy. Okay, they belong to the Garogleinian family. They belong to the Garogleinian family. The family or the tribe was well known and famous for the hallmark of their trust and honesty. Is it clear? That family or the tribe was famous for the hallmark of the trust and honesty. Or as far as the motto of their wish is concerned, both the boys basically were fond of riding horses. उन दोनों को जो है घोड़े पे सवारी करने का बड़ा शौक था. तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है. We are going to touch the book number second first because it's about the story only. If we'll have chance to have the face-to-face classes, we'll discuss about this. We'll have lots of discussion about the first one. There is no problem. But just till now, let's have the book number second. It's about the stories only. Okay. So let's have snapshots. Chapter number first about the two Armenian boys who were fond of riding horses, and the tribe name is Garogleinian. That tribe actually was famous for the hallmark of trust and honesty. So let's have your story, students. The Summer of the Beautiful White Horse. The Summer of the Beautiful White Horse by William Saroyan. This story is about two poor Armenian boys. ये कहानी जो है दो गरीब Armenian boys के बारे में है. This story is about two poor Armenian boys. ये कहानी जो है दो गरीब poor Armenian boys के बारे में है. वो belong to a tribe. जिनका नाता जिनका संबंध एक जनजाति से है, एक ट्राइब से, एक जनजाति से है. This story, The Summer of the Beautiful White Horse by William Saroyan. This story is about two poor Armenian boys. ये कहानी जो है दो गरीब Armenian boys की है. वो belong to a tribe, जो एक जिनका संबंध जिनका नाता एक ट्राइब से है. वो hallmarks are trust and honesty. I told you that. जिनके hallmark, जिनके प्रतीक चिन्ह, जिनके निशानी trust और honesty है. Trust विश्वास और ईमानदारी है. जिनकी निशानी, जिनकी पहचान जो है विश्वास और ईमानदारी. टू आर्मेनियन बॉयज़. ओके, टू आर्मेनियन बॉयज़ की यहाँ पे कहानी है. एंड आई मेंशन द नेम ऑफ टू आर्मेनियन बॉय. द फर्स्ट बॉय इज आरम, वो इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी. तो इस कहानी का, इस चैप्टर का नरेटर है, पूरी कहानी सुनाने वाले हमारे आरम ही है. एक्चुअली इज़ 9 years old. ही इज़ 9 years old. ओके, एंड द सेकेंड कैरेक्टर वो इज़ बेसिकली द कज़न ऑफ आरम. ही इज़ मुराद. ही इज़ मुराद. तो यहाँ पे आर्मेनियन बॉयज़ की कहानी है. Okay, a tribe whose hallmarks are trust and honesty. इनके hallmark क्या है? Trust and honesty है. So let's have a chapter. Okay, with the line number first. One day back there in the old days. One day back there in the good old days. एक दिन की बात है, बहुत पहले समय की बात है. एक दिन की बात है. One day back there in the good old days. एक दिन बहुत ही पुराने समय की बात है. When I was 9, जब मैं 9 साल का था. I stand for Aram. I stand for Aram. जब मैं 9 साल का था. And the world was full of every imaginable kind of magnificence. और संसार जो है हर प्रकार की भव्यता और कल्पनाओं से भरा हुआ था.
उस समय एक समय की बात है, बहुत ही पुराने समय की बात है। व्हेन आई वाज 9, जब मैं 9 साल का था, वो वाज 9 years old। एडम यहाँ बता रहा है, एडम इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। एडम, ओके, वी हैव टू फेमस करेक्टर, टू वेरी वेल नोन करेक्टर, एडम एंड मुराद। तो एडम कह रहा है बहुत पुराने समय की बात है, एक दिन की। व्हेन आई वाज 9 एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंट। जब मैं 9 साल का था, एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंट। संसार जो है प्रकार की भव्यता, और संसार हर प्रकार की भव्यता और कल्पना से भरा हुआ था। संसार भव्य था, कल्पनाएं थी यहाँ वहाँ। उस समय की बात है, पूरा संसार जो है भव्यता और कल्पना से भरा हुआ था। उस समय की बात है, व्हेन आई वाज 9, जब मैं 9 साल का था। एंड लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। और जीवन जो अभी तक जो है, उस समय तक जो है डिलाइटफुल, बड़ा आनंदमयी था, और मिस्टीरियस ड्रीम, और रहस्यमयी सपनों से भरा हुआ था। और जीवन बड़ा आनंदमयी था और रहस्यमयी सपनों से भरा हुआ था। माय कज़न मुराद, मेरा कज़न, हिज नेम इज़ मुराद, नाम है उसका मुराद, ओके, मुराद नाम है उसका मुराद। वो वाज कंसीडर्ड क्रेजी बाय एवरीबॉडी, जो हर किसी के द्वारा बड़ा क्रेजी, बड़ा ही सन की माना जाता था। क्रेजी मीन्स सन की, बड़ा ही शैतानी करने वाला बच्चा, जो हर किसी के द्वारा जब बड़ा क्रेजी माना जाता था, बड़ा सन की, बड़ा शैतानी करने वाला माना जाता था। वो न्यू हिम, जो उसे जानते थे, जो कोई भी मुराद को जानता था उसे क्रेजी समझता था। उसे क्या समझता था? क्रेजी समझता था। एक्सेप्ट मी, मेरे को छोड़ के, मैं तो नहीं समझता था, मैं उसे क्रेजी नहीं समझता था। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, सुबह 4 बजे मेरे घर पे आ गया। मुराद सुबह मेरे कज़न सुबह 4 बजे मेरे घर पे आ गया। एंड वोक मी अप, और मुझे जगा दिया, टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे कमरे की विंडो को टैप करके, खटखटा करके मुझे मॉर्निंग में सुबह 4 बजे जगा दिया। एडम, ही सेड, कहा एडम, उसने कहा एडम, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मैं बिस्तर से जम्प आउट हो गया, मतलब उछल पड़ा। उसने कहा मॉर्निंग में 4 बजे विंडो पे टैप कर रहे हैं और कह रहा है एडम, ही सेड, उसने कहा एडम, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मैं बिस्तर से उछल पड़ा। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और मैंने खिड़की के बाहर झांक के देखा। मैं बिस्तर से मैंने जंप किया और विंडो के बाहर झांक के देखा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, और जो मैंने देखा ना, उस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता था। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, और जो मैंने देखा था उस पर मैं विश्वास मैं नहीं कर सकता था। इट वाज़न्ट मॉर्निंग येट, अभी भी उस समय तक सुबह नहीं हुई थी। जब वो आया था 4 बजे, उस सुबह तक सवेरा नहीं हुआ था, मॉर्निंग नहीं हुई थी। और इट वाज समर, लेकिन मौसम था गर्मी का, समर सीजन था, ओके। इट वाज़न्ट मॉर्निंग येट, जब मुराद मेरे पास आया मॉर्निंग में 4 बजे, तो उस इट वाज़न्ट मॉर्निंग येट, तो समय नहीं था। बट इट वाज समर, लेकिन गर्मी का मौसम था। एंड विद डे ब्रेक, और डे ब्रेक था, डे ब्रेक का मतलब सवेरा होने को था, सवेरा होने को था। डे ब्रेक जो है दिन भोर होने को थी, सवेरा होने को था। नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वाज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वाज़न्ट ड्रीमिंग। नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और संसार के चारों ओर इतने मिनट्स नहीं बचे, इतने मिनट्स नहीं थे, मतलब कहने का मतलब है इतने मिनट नहीं थे सवेरा होने में। अभी चारों तरफ देखें, इतने मिनट बाकी नहीं थे सवेरा होने में। सवेरा होने को था, डे ब्रेक था ऑफ द वर्ल्ड, संसार में। इट वॉज लाइट इनफ, और इतनी रोशनी थी, इनफ पर्याप्त रूप से फॉर मी, मेरे लिए, टू नो आई वाज़न्ट ड्रीमिंग, ये जानने के लिए मैं सपना नहीं देख रहा था। और इतनी रोशनी तो बाहर थी, ये जानने के लिए कि मैं सपना नहीं देख रहा था। माई कज़न वार रियली आउटसाइड द विंडो, वह कमरे के बाहर था, विंडो के बाहर था। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। माई कज़न वॉज सिटिंग, माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। मेरा कज़न मुराद जो है सुंदर से सफ़ेद घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। मेरा कज़न मुराद जो है सुंदर से सफ़ेद घोड़े बैठा हुआ था, ओके। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने अपने सर को विंडो के बाहर निकाला, मतलब मैंने झांक के देखा, बाहर निकाला, स्टक आउट। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने अपने सर को, अपने माथे को जो है विंडो के बाहर निकाला। एंड रब्ड माई आइज़, और अपनी आँखें मैंने रब की, अपनी आँखें रगड़ी और देखा सब कुछ रियल ही है क्या। ही वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, तो मैंने खिड़की के बाहर जो अपने सर को निकाला और देखा, अपने आँखों को रगड़ा और देखा। यस, ही सैड इन अ, यस उसने कहा, ही सैड इन आर्मेनियन, उसने आर्मेनियन में कहा, आर्मेनियन इज अ लैंग्वेज, उसने आर्मेनियन लैंग्वेज में कहा यस, हाँ। इट्स अ हॉर्स, ये घोड़ा ही है, ये हॉर्स ही है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, मेक इट क्विक का मतलब जल्दी करो फटाफट से, अगर तुम राइड करना चाहते हो। विंडो के बाहर खड़ा है, सुबह 4 बजे, 4 o'clock मॉर्निंग में। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, जल्दी करो, अगर तुम्हें राइड करना है, सवारी करनी है तो फटाफट से करो।
they were poor. Don't forget that. This story about two poor Armenian boys. ये कहानी है दो गरीब आर्मेनियन बॉयज़ की. If they were poor, then how can they get a beautiful white horse? The story revolves around white horse. Okay, the summer of the beautiful white horse. तो कहा अगर राइड करना है तो फटाफट जल्दी से बाहर आ जा. ओके, कहा मेक इट क्विक, फटाफट जल्दी कर. इफ़ यू वांट टू राइड, अगर तुझे सवारी करनी है तो राइड करना है तो. ओके, I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the wall by mistake. I knew, मुझे मालूम था my cousin Murad enjoyed being alive. कि मेरे cousin मुराद को जो जीवित रहना या संसार को महसूस करना, जीना उसे बड़ा पसंद था. He loves this. मुझे मालूम था मेरे कज़न मुराद को जो है being alive, जीवित रहना या जिंदा रहना या इसे सब कुछ ऐसा, उसे इस संसार को मतलब जीना खुशियों के साथ, being alive उसे पसंद था. जीवित रहना मतलब जिंदा रहना नहीं है, ज़िंदगी को जीना तरीके से. मुझे मालूम था उसे बहुत पसंद था ये सब कुछ, being alive more than anybody else. किसी और व्यक्ति की तुलना में, किसी भी और व्यक्ति की तुलना में, who had ever fallen into the wall by mistake, जो संसार में गलती से आ गया है. who had ever fallen into the world by mistake, जो संसार में गलती से आ गया. मुझे मालूम था उस व्यक्ति के बजाय being alive, जीवित रहना, इस दुनिया का आनंद लेने का मेरे भाई को, मेरे कज़न को जो बड़ा शौक था. मुझे मालूम था. ओके, बट दिस वाज मोर देन इवन आई कुड बिलीव. लेकिन being alive जो मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, एरम ने कहा, जो नरेटर यहाँ पे कहानी का है, being alive की बात जो मुराद की मैंने यहाँ पर की, किसी भी ऐसे व्यक्ति की तुलना में someone else जो गलती से यहाँ पर आ गया था संसार के अंदर, उस being alive की जो बात मैंने आपसे की, but this was more than even I could believe. लेकिन जो भी कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दिया वो तो मेरे विश्वास करने से भी ज़्यादा अधिक था. विश्वास नहीं हो रहा था आंखों पे. वाइट हॉर्स पे आया है वो, मुझे विश्वास नहीं हुआ था. but this was more than even I could believe. लेकिन मैं जिस बात पर विश्वास कर सकता था उससे ज़्यादा था, उम्मीद से कुछ ज़्यादा था वहाँ पर. इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहली बात बता दूँ मैं आप सभी को. आपका मतलब वो एक नरेटर है यहाँ पे, कहानी सुनाने वाला यहाँ पे आपके सामने है, नरेट कर रहा है पूरी स्टोरी एरम. एक्चुअली ही वाज 9 एट दिस टाइम. ओके, इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस. इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहली बात, माई अर्लीस्ट मेमोरीज, मेरी जो पहले की यादें हैं, हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, वह हॉर्सेस की थी, घोड़ों की थी. एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड. और जो मेरी पहली लॉन्गिंग थी, सबसे पहली बात जो मेरी यादें थी वो घोड़ों की थी, हॉर्सेस की थी. और जो मेरी सबसे पहली लॉन्गिंग थी, मेरी सबसे पहली अभिलाषा में इच्छा थी, हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, वह राइड करने की थी, वह सवारी करने की थी. क्या थी वो? सवारी करने की थी. दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट. और ये बहुत ही सुंदर हिस्सा था, सुंदर दृश्य था ये देखना उस घोड़े को वहाँ पर भाई मुराद को लेके आया था. बहुत ही सुंदर था, वंडरफुल पार्ट था ये हिस्सा मेरे उस जीवन का. इन द सेकंड प्लेस, दूसरे स्थान पर नहीं, दूसरी बात क्या बता दूं मैं आप सभी को. इन द सेकंड, दूसरी बात, वी वर पुअर, हम गरीब थे. लॉन्गिंग मेरी थी घोड़े को सवारी करने की, लेकिन सेकंड बात यहाँ पे, सेकंड प्लेस, दूसरी बात बता दूं मैं आपको, वी वर पुअर, हम गरीब थे. दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ. दिस वॉज द पार्ट, और मेरे जीवन का ये वो हिस्सा था, दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव दैट व्हाट आई सॉ. और उस जीवन के उस हिस्से ने, दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी, और जीवन का ये वो हिस्सा था जिसने मुझे परमिट नहीं किया था, मुझे आज्ञा नहीं दी थी टू बिलीव व्हाट आई सॉ, कि मैंने वहाँ पर क्या देखा था उस पर विश्वास करने की. जो मैं वहाँ देख रहा था, मुझे वहाँ विश्वास नहीं हुआ कि लाइफ में मेरे साथ ऐसा भी पॉसिबल है क्या. वी वर सो पुअर, और इतना ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स मेरे सामने है. मेरी फर्स्ट लॉन्गिंग थी हॉर्स की राइड करने की, और वहाँ मेरे सामने वो हॉर्स खड़ा हुआ है. तो मुझे विश्वास नहीं था इस बात पर कि ऐसा सच में वहाँ पर था क्या. ओके, इसके बाद दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, लाइन हो चुकी है ये वाली. वी वर हैविंग द सेकेंड वन. ओके, वी वर पुअर, हम गरीब थे. हम क्या थे? हम पुअर आर्मेनियन बॉयज़, हम गरीब थे. वी आर इंडियंस, फ्रेंच, अमेरिकन्स, एंड वी वर ओके लाइक यू आर इंडियन. ओके, एंड वी वर आर्मेनियन. सो देयर वी वर पुअर, हम गरीब थे. वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं था. आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारी पूरी जनजाति जो है पॉवर्टी स्ट्रिकन थी, गरीबी से
परेशान थी, गरीबी से भयभीत थी, गरीबी से जूझी थी। ओके, पुअर स्ट्रिकन थी। आवर होल ट्राइब वाज पुअर, पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारी पूरी जनजाति जो है वो गरीबी से स्ट्रिकन थी, भयभीत थी, भयाक्रांत थी, जूझी थी, परेशान थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोग्लैनियन फैमिली, गैरोग्लैनियन फैमिली, एंड द मीनिंग ऑफ गैरोग्लैनियन फैमिली इज आर्मेनियन ट्राइब, आर्मेनियन जनजाति। आमीन दिया हुआ यहाँ पे एक्चुअली इट्स अ गैरोग्लैनियन फैमिली लिखा है, फर्स्ट इज मेंशन यहाँ पे फर्स्ट कर रखा है, इसके नीचे लिख रखा बेटा है, देखो यहाँ पे द मीनिंग ऑफ गैरो इजली ग्लैनियन फैमिली इज एन आर्मेनियन ट्राइब, एक आर्मेनियन जनजाति यहाँ पर है। ओके, यू कैन चेक इट आउट इजली, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, so our whole family tribe was poverty stricken. Every branch of the Garo-Gleanin family was living in the most amazing and comical poverty in the world. और Garo-Gleanin family की हर ब्रांच, हर शाखा, चाहे फैमिली यहाँ पर हो चाहे कहीं और पर हो, हर शाखा इस परिवार की was living in the most amazing and comical poverty in the world. इस संसार में बड़े आश्चर्य के साथ और बड़े हास्यपद गरीबी में जी रही थी। इस संसार में बड़े आश्चर्य के साथ और बड़े हास्यपद गरीबी में जी रही थी। बड़ा ही एक कॉमिकल पॉवर्टी हमारे पास थे, एक ऐसी गरीबी जिस पर हंसा जाए, जिस पर हंसा जाए तो ठीक होगा, तो ठीक होगा। एक बड़ी हास्यपद गरीबी में हम लोग जी रहे थे। नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी, नोबडी कुड अंडरस्टैंड, और कोई भी समझ नहीं सकता था इस बात को, और कोई भी नहीं समझ सकता था। nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, और कोई इस बात को नहीं समझ सकता था where we ever got money कि हमें कभी पैसा कहाँ मिलता, कहाँ से मिलेगा, enough to keep जो पर्याप्त हो अस हमारे लिए, with food in our bellies हमारे पेट में खाना डालने के लिए, हमारी भूख को शांत करने के लिए, हमारे बैलीज में फूड डालने के लिए, मतलब हमारी जो भूख है उसे मिटाने के लिए पैसा कहाँ से मिलेगा, इसके बारे में कोई भी नहीं समझ सकता। इतने गरीब थे, हमको नहीं समझ सकता था। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, और यहाँ तक कि जो परिवार का बुजुर्ग आदमी था वो भी नहीं समझ सकता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, इन सभी बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर ऑनेस्टी, कि भले हम लोग गरीब थे लेकिन हम लोग अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थे, अपनी ईमानदारी के लिए बड़े फेमस थे। ओके, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे। चलो जो भी है, इन सभी बातों के बाद जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हम अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर ऑनेस्टी। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 centuries. We had been famous for our honesty for something like 11 centuries, और हम अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस रहे थे, मैं कहूँ तो 11 शताब्दियों से, for something like 11 centuries, 11 शताब्दियों से हम अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस रहे थे, अपनी ईमानदारी के लिए फेमस रहे थे। Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world, even when we had been the wealthiest, यहाँ तक कि जब हम धनवान थे, और यहाँ तक कि जब हम धनवान थे, इन वट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, तो संसार हमारे बारे में सोचा करता था कि हम धनवान थे तब भी हम ऑनेस्ट थे, आज तो पुअर हैं लेकिन जब धनवान थे तब भी हम क्या थे, ऑनेस्ट थे। यहाँ तक कि जब धनवान थे, वेल्थियस्ट थे, तब भी हम ऑनेस्ट थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, वी वर प्राउड फर्स्ट, कि सबसे पहले हमें नाज था अपने आप पर, कि सबसे पहले अपने आप पर क्या था, हमें नाज था। ऑनेस्ट नेक्स्ट, ईमानदार तो बाद में थे, पहले नाज था इसी बात पर हमें अपने आप पर, दैट वी वर ऑनेस्ट। ईमानदार तो बाद में थे, पहले नाज था हमें अपने आप पर। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग, हम सही गलत में विश्वास करते थे। पहले वी वर ऑनेस्ट, देन वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग, सही गलत क्या है बाद की बात है, तो पहले हम ईमानदार थे। ओके, नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, और हम में से कोई भी जो है किसी का भी संसार में एडवांटेज, फ़ायदा नहीं उठाता था, और हम में से कोई भी जो किसी का इस संसार में बेनिफिट नहीं उठाता था, एडवांटेज नहीं उठाता था। लेट अलोन स्टील, अरे चोरी को तो छोड़ दो, एक और छोड़ दो, चोरी तो बहुत दूर की बात है। ये सारी कहानी जो प्रीवियस हिस्ट्री बताई जा रही है यहाँ पे, गैरो-ग्लेनिन फैमिली की, आर्मेनियन ट्राइब की, बाय द हैरम नरेटर, यहाँ क्यों बताया जा रहा है? एक्चुअली इज ट्राइंग टू प्रूव
the honesty, the hallmark of trust and honesty, just like they have and they had. जो उनके पास थी वो प्रूव कर रहा है, बता रहा है सारी बातें आप सभी को अपनी जनजाति के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में. आज भी ऐसा ही है. ओके, और कहता है लेट अलोन स्टील, कि किसी का बेनिफिट लेने की तो बहुत दूर की बात है, चोरी को तो छोड़ दो, एक और चोरी को तो आप एक और छोड़ दो, लेट अलोन स्टील, चोरी को तो जाने दो. चोरी करने की तो बात बहुत दूर की बात रही, हम किसी का एडवांटेज भी नहीं लेते थे और ना लेते हैं. कंसिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, कंसिक्वेंटली परिणाम, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, यहाँ तक कि मैं घोड़े को देख सकता था. सो मैग्निफिसेंट, बड़ा ही भव्य, बड़ा शानदार था. इवन दो आई कुड स्मेल इट, मैं उसे स्मेल भी कर सकता था. इवन दो, यहाँ तक कि मैं उसे स्मेल भी कर सकता था, उसे सूंघ सकता था. सो लवली, बहुत ही प्यारा था वो. इवन दो आई कुड हियर इट ब्रेथिंग, यहाँ तक कि उस घोड़े की मैं श्वास को भी महसूस कर सकता था. इवन दो आई कुड हियर इट ब्रेथिंग, यहाँ तक कि इसकी श्वास को मैं सुन सकता था. सो एक्साइटिंग, बड़ी एक्साइटिंग थी, बड़ी उत्तेजना भरी थी. I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad. I couldn't believe, मुझे विश्वास नहीं हुआ था. The horse had anything to do with my cousin Murad. The horse had anything to do with my cousin Murad. I couldn't believe, कि मुझे विश्वास नहीं हुआ था उस घोड़े का मेरे कज़न मुराद से, मेरे कचेरे में मेरे भाई से कुछ नाता था. मुझे विश्वास नहीं हुआ था. I couldn't believe the horse had anything to do. एनीथिंग टू डू का मतलब कुछ नाता था, कुछ उसका जुड़ाव था, संबंध था उसका. इस बात पर मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि उस घोड़े का मेरे कज़न, मेरे चचेरे भाई से कोई नाता था. और विथ मी, और मेरे साथ था, कि मेरे से कोई नाता था. मुझे इस बात में विश्वास नहीं हुआ था. मतलब मुराद घोड़ा लेकर आया था, वो घोड़े के साथ उसका रिलेशनशिप और मेरे साथ रिलेशनशिप, इस बात में मुझे विश्वास नहीं हुआ था. और विथ एनी ऑफ द अदर मेंबर ऑफ आवर फैमिली, या फिर हमारे परिवार के किसी और सदस्य के साथ उस घोड़े का हैड एनीथिंग टू डू, कुछ उसका नाता था, कुछ लेन देन था, इस बात पर मुझे विश्वास नहीं था. मतलब हमारा घोड़ा कैसे हो सकता था. यू आर सो पुअर, हम सब गरीब थे. एस्लीप और अवेक, सोया हुआ था, जागा हुआ था. बिकॉज, क्योंकि आई न्यू माई कज़न मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मैं जानता था मेरा कज़न मुराद जो है घोड़ा खरीद नहीं सकता था. मैं जानता था माई कज़न मुराद, आई न्यू माई कज़न मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, मैं जानता था मेरा कज़न मुराद जो है हॉर्स नहीं खरीद सकता था. एंड इफ़ ही कुडंट हैव बॉट, और अगर उसने वो नहीं खरीदा था, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, उसने उसे ज़रूर चुराया होगा. बात आगे चुराने की. And steal is not the hallmark of Garro-Glennion family और Armenian boys, Armenian family. तो अगर उसे वो खरीद नहीं सकता था, तो ज़रूर उसने क्या किया होगा, उसे स्टील किया होगा, उसे स्टोलन चुराया होगा. एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैज़ स्टोलन इट, और मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूँ कि उसने चुराया था. उसने चुराया था बिकॉज लिखा हुआ नहीं है, बिकॉज बता रहा हूँ आपको, लिखा हुआ पहले आ चुका है. बिकॉज I already mentioned that we were famous for our trust and honesty. तो ये मुराद घोड़ा चुरा कैसे सकता है. ठीक है. सो नो लिखा है यहाँ पे कि I refuse to believe he has stolen it, और मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूँ उसने उस घोड़े को चुराया था. No member of the Garro-Glennion family could be a thief. क्योंकि Garro-Glennion फैमिली में से कोई भी सदस्य जो है चोर तो नहीं हो सकता था, चोर नहीं हो सकता था. No member of the Garro-Glennion family में से कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता था. I stared first at my cousin, कि सबसे पहले मैंने अपने कज़न की ओर घूर के देखा, I stared first at my cousin and then at the horse, और उसके बाद घोड़े की ओर घूर के देखा. There was a pious stillness. सबसे पहले मैंने अपने कज़न की ओर घूर के देखा, उसके बाद घोड़े की ओर घूर के देखा. There was a pious stillness. वहाँ पर pious stillness था. वहाँ पर एक बिल्कुल एक शुद्ध शांति थी, एक पावक शांति थी. वो देख के लग नहीं रहा था कुछ नेगेटिव वहाँ पर होगा. वहाँ पर पायस स्टिलनेस थी. मैंने देखा दोनों को, पहले भाई को देखा फिर उसको देखा. वहाँ पे पायस स्टिलनेस थी, पायस शांति थी, देखा मैंने ना. इसके बाद एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, और दोनों में ह्यूमर था, दोनों में हास्य था. एक हाथ से हंसने वाली बात थी, दोनों में ह्यूमर था. which on the one hand delighted me, मतलब वहाँ पे पायस स्टिलनेस था, वहाँ पे ह्यूमर था. which one had delighted me, जिसने एक और मुझे आनंदित किया था. उस ह्यूमर ने, उस पायस स्टिलनेस ने
एक और तो मुझे डिलाइटेड आनंदित किया था, एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी, और दूसरा मुझे भयभीत किया था। एक और तो मुझे आनंद महसूस हुआ, चलो हॉर्स है, मेरा लॉन्गिंग जो है हॉर्स राइडिंग का पूरा हो जाएगा। एक और मैं बड़ा डरा था, बिकॉज वी वर पुअर ना, हम गरीब थे। हॉर्स कैसे आया? हॉर्स कैसे आया? मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? मैंने कहा मुराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? तुमने घोड़ा चुराया कहाँ से था? मैंने कहा मुराद, तुमने घोड़ा कहाँ से चुराया था? लीप आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर लीप आउट, छलांग लगाते हुए। ही सेड लीप आउट ऑफ द विंडो, लेट्स द लाइन अगेन। मुराद से कहा मुराद, आई सेड, मैंने कहा, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? तुमने घोड़ा कहाँ चुराया था? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, ही लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ यू वांट टू राइड, इफ यू वांट टू राइड, अगर तुम राइड, लीप आउट ऑफ द विंडो, कमरे से बाहर, विंडो से बाहर आते हुए, विंडो से बाहर आते हुए लीप आउट। ही सेड, उसने कहा, इफ़ यू वांट टू राइड, अगर तुम सवारी करना चाहते हो तो। मतलब विंडो में से लीप आउट किया, छलांग लगाई और कहा कि तुम सवारी करना चाहते हो तो इतना बताओ, बाकी डिस्कशन मैं नहीं करना चाहता, इसमें इतना लिखा हुआ है। इट वॉज ट्रू, ये सच था, ये सच था। देन उसके बाद ही हैड स्टोलन द हॉर्स, अगर ये इट वॉज ट्रू, ये सच था, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़े को चुराया था। अरे ये तो सच था, उसने घोड़े को चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई प्रश्न था ही नहीं, जवाब दे रहा नहीं ना वो, कह रहा है घोड़े को अगर सवारी करना है तो ठीक है, डिस्कशन नहीं कर रहा है फालतू वो। इट वॉज ट्रू, ये सच था। देन, तो इसके बाद तो सच था ये। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़े को चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई प्रश्न था ही नहीं। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट, वह यहाँ पर आया था मुझे इन्विटेशन देने के लिए कि राइड करना है या नहीं करना है। एज आई चोज, जैसा कि मैं चाहता था, जैसा कि मैं चाहता था। वेल, इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। वेल, इट सीम टू मी, और मुझे लगा ऐसा, मुझे प्रतीत हुआ, स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड, की सवारी के लिए घोड़े को चुराना वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, किसी और चीज़ के चुराने के समान नहीं था। जैसे बाकी चीज़ों को हम चुराते हैं ना, तो ऐसा वैसा नहीं था। घोड़े को सवारी के लिए चुराना, तो सवारी के लिए घोड़े को चुराना नहीं था। वेल, इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वाज नॉट सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। ऐसा मुझे लगा कि सवारी के लिए घोड़े को चुराना नहीं था, जैसे हम कुछ और चुराते हैं, समथिंग एल्स, सच एज मनी, जैसा कि पैसा चुराते हैं। फॉर ऑल आई न्यू, जैसा कि मुझे, फॉर ऑल आई न्यू, और जो भी कुछ मैं जानता था, मे बी इट वाजंट स्टीलिंग एट ऑल, कि हो सकता ये बिल्कुल भी किसी भी स्वरूप में चोरी नहीं थी, चोरी नहीं थी, ऐसा मुझे लगा। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट, इफ़ यू यहाँ पर कौन है? रीडर्स की बात हो रही है, पाठक जो यहाँ पढ़ रहे हैं स्टोरी को, कहानी को। इफ़ यू वर, अगर आप इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट, अगर आप क्रेजी हैं इस चीज़ के बारे में, अगर आप इस चीज़ को लेके उत्तेजित हो रहे हैं, आप संकीर्ण हो रहे हैं, हॉर्सेज द वे माई कज़न, इफ़ यू आर क्रेजी अबाउट द हॉर्स, अगर हॉर्स के बारे में आप क्रेजी हैं, अगर हॉर्स के बारे में आप क्रेजी, आपको थोड़ा सा कुछ लग रहा है कि यहाँ पे कुछ बात ऐसी हो रही है, द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, जिस तरह से मेरा कज़न मुराद था और मैं था, जिस तरह से मैं और मेरा भाई, मेरा चचेरा भाई मुराद, जिस तरह से हम क्रेजी थे, अगर आप भी क्रेजी हैं, इट वाज़न्ट स्टीलिंग, तो कह दूँ ये चोरी नहीं थी, ये चोरी नहीं थी। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, इट वुडंट बिकम स्टीलिंग, और ये चोरी नहीं बनेगी अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, जब तक हम घोड़े को नहीं बेच देते, जब तक हम घोड़े को बेचने का ऑफर नहीं करते, उसे बेचने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं, तब तक ये घोड़ा चुराया नहीं माना जाएगा। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, और जो मुझे अच्छी तरह से पता है, ऑफ कोर्स वी वुड नेवर डू, आई न्यू, मुझे मालूम था, वी वुड नेवर डू, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। वी वुड नेवर सेल द हॉर्स एट ऑल, हम घोड़े को कभी नहीं बेचेंगे, और जब नहीं बेचा गया तो चुराया भी नहीं गया, वापस कर देंगे ना सवारी करने के बाद। बस रॉन्ग इन इट, ओके। इट्स ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स। Thank you and have a nice day, okay? Thank you and have a nice day.